ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الصلاۃ المریض. یہ باب ہے کس چیز کے بیان میں؟ مریض کی نماز. تو جن کے پہلے جو ہے وہ کیا ہے، یعنی اس باب کا پہلے باب کے ساتھ مناسبت کیا ہے؟ پہلے باب جو ہے وہ سجد سہو کے بارے میں سمجھا ہے. کس چیز کے بارے میں؟ سجود سہو کے بارے میں. یعنی چونکہ سجود سہو جو ہے وہ بھی عارضی چیز ہے، کبھی کبھار پیش آتے ہیں. اس طرح انسان بھی ہر وقت مریض نہیں ہوتا، یعنی ہر وقت جو ہے وہ مریض نہیں ہوتا، کبھی کبھار پیش ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے یہاں پر یعنی باب سجود سہو کے بعد جو ہے صلاۃ مریض کا ذکر کیا. مریض کسے کہتے ہیں؟ یا مریض کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ انسان کے بدن میں کسی ایسی چیز کا حلول کرنا، کسی ایسی چیز یعنی انسان کے بدن میں کسی ایسی چیز کا حلول کرنا جس کی وجہ سے انسان کے اندر عناصر اربعہ میں کوئی عناصر اربعہ کا کیا ہو جاتا ہے، اس کا کام جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. سمجھا کہ عناصر اربعہ معلوم ہے نا، کہ یعنی صفرا سودا، یعنی انسان کے باڈی میں جو کیا ہوتے ہیں، مٹیریل ہوتے ہیں، وہ عناصر، انسان کا بدن جو ہے وہ عناصر اربعہ سے بنا ہے. سمجھے؟ مٹی سے، ہوا سے، پانی سے، ایک وہ سودا سے، سمجھے؟ ایک کالا پن ایک چیز ہوتی ہے، اس سے بنایا. تو انسان کے اندر جب کوئی چیز جو ہے وہ دخول کر لیتا ہے، حلول کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے جب عناصر اربعہ اپنا کام چھوڑ لیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرض کہا جاتا ہے. اب یعنی صلاتی جب انسان جو ہے دیکھو، یعنی انسان کیا ہوتا ہے، نماز کسی بھی حالت میں جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ معاف نہیں ہوتا. سمجھا؟ کیا ہوتا ہے؟ معاف نہیں ہوتا. تو کیا کرنی چاہیے؟ تو شریعت کی طرف سے جو ہے کچھ رخصتی دی گئی ہے. سمجھا کہ کسی حال میں بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. اتنے استطاعت تو اتنے تک کرو، اتنے استطاعت تو اتنے تک کرتے، اتنے استطاعت تو اتنے تک کرو، لیکن پھر بھی معاف نہیں ہے. سمجھا کہ اگر بالکل جو ہے کوئی نہیں کر سکتا تو پھر قضا کرو اور دوسرے موقع پر پھر دوبارہ قضا پڑھ لو. بہرحال پڑھتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں. اذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد. اذا تعذر على المريض قيام، یعنی جب مریض پر جو ہے قیام کرنا مشکل ہو، سمجھے؟ متعذر ہو، صلى قاعدا، تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ کر پڑھے، يركع ويسجد، بیٹھ کر رکوع بھی کرے اور بیٹھ کر سجدے بھی کرے. اس کیا ہوتا ہے، اب ہر بیماری جو ہوتے ہیں وہ یعنی قیام کرنا جو ہے وہ فرض ہے. سمجھا کہ قیام کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. لیکن مریض کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی اتنا مریض ہو کہ وہ کیا ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے لیے معاف ہے، وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں. اب کیا ہر بیماری جو ہے وہ یعنی جب بھی معمولی سی درد ہو یا تو آیا ہر بیماری جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، قیام کو ساقط کر سکتے یا نہیں کر سکتا؟ تو ایک قول تو یہی ہے کہ ہاں، جب انسان گرنے لگے، سمجھے کیا ہے، یعنی اس کے لیے گرنا ہو تو پھر جو ہے وہ کیا ہو، اس کو خوف ہو کہ اگر ایسا نہ ہو کہ میں گر جاؤں، قیام کرنے سے گر جاؤں، تو پھر جو ہے اس صورت میں معاف ہو سکتا ہے. لیکن اصح قول یہ ہے، اصح مفتابی قول یہ ہے کہ نہیں، ہر یعنی وہ مرض جو خطرہ ہو، کیا ہے، کیا گھر میں کھڑا ہو جاؤ تو بیماری میں اضافہ ہوگا، یا کھڑا ہونا اس کے لیے مضر ہو یا نقصان دہ ہو، سمجھے، یا گر رہا ہو، یعنی ہر قسم کی بیماری جو انسان کو کیا کرتا ہے، جو انسان کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے، تو پھر جو ہے اس صورت میں جو ہے قیام ساقط ہو جاتا ہے اور وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طرح اگر وہ اتنے استطاعت رکھتا ہو، کیا کر سکتا، یعنی اگر اتنے استطاعت رکھ سکتا ہو کہ قیام تو کر سکتا لیکن پھر مزید جو ہے نہیں بیٹھ سکتا، تو پھر کیا کرنی چاہیے؟ تو پھر کچھ تو کڑا ہو سکتا ہو اور کچھ کڑا نہیں ہو سکتا. تو پھر جتنے استطاعت رکھتا ہو کڑا ہو رہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کر لے. یہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بس میں آج کھڑا نہیں ہو سکتا تو اسی وجہ سے شروع ہی سے بیٹھ جائے. نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آئے؟ جتنے استطاعت کھڑے ہونے کا ہو اتنے ہی کھڑا رہے، اور پھر جب طاقت آتا ہے تو پھر بیٹھ جائے. سمجھ آئے؟ اسی طرح اگر کوئی انسان حتیٰ کہ جواہر الفقہ میں، سمجھ آئے، جواہر الفقہ میں یہ لکھا ہے، جواہر الفقہ نہیں، الجوہرۃ المنیرہ میں، سمجھا کہ یہ لکھا ہے کہ اگر ایک انسان میں اتنا استطاعت رکھتا ہو کہ وہ کھڑے ہو کر تکبیر باندھ سکے، تو
तकबीर बांधने में कितना वक्त लगता है, अल्लाह अकबर कहे, समझा, हाथ उठाए। तो कहते हैं कि अगर तकबीर बांधने में जो है वो यानी इतना इस्तितादत है कि वो खड़े होकर तकबीर बांध सकते, तो फिर उस पर वाजिब है कि वो खड़े होकर तकबीर बांधे, फिर मस्जिद क़िरात के लिए जो है वो बैठ जाए, समझ आ गया। और इसी तरह अगर कोई इंसान जो है वो क्या खड़े होकर किसी चीज पर टेक लगाकर खड़ा हो सकता है, लेकिन सीधा खड़ा नहीं होता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो क्या किसी चीज पर टेक लगाकर खड़े हो, लेकिन फिर उसके लिए बैठना जायज नहीं होगा, समझ आ गए। तो देखो, इज़ा तअज़्ज़रा अल मरीज़ अल क़ियाम, अगर किसी मरीज पर जो है क़ियाम करना मुश्किल हो, सल्ला क़ाइदन, तो वो बैठ कर पड़े, व यरकू व यसजुदु, रुकू भी करे और सजदे भी करे, फ़इन लम यस्तति रुकू व सुजूदा, लेकिन अगर वो रुकू का भी यानी रुकू भी नहीं कर सकता, समझ आ गई हो, वो सुजूद और सजदे के लिए नीचे जमीन पर नहीं टिक सकता, समझ आ गए। अवमा ईमान, तो फिर इशारे से नमाज पढ़ ले। वजअल सुजूद अखफज़ मिन रुकूई, और सुजूद को थोड़ा सा जो है वो उसके लिए रुकू के लिए थोड़ा सा झुक जाए, और फिर जो है अतहिया की शक्ल में बैठ जाए, या जिस तरह वो बैठ सकते हो, समझा कि इसी तरह बैठ जाए। फिर उसके बाद जो है वो क्या है, रुकू के लिए थोड़ा सा झुके और सजदे के लिए थोड़ा सा ज्यादा झुके, समझ आए, थोड़ा सा ज्यादा झुके। वला यरफ़अु इला वजह, अच्छा इस पर दलील ये है कि कौन इमरान बिन हुसैन, ये एक सहाबी है, उसको बवासीर का मर्ज, बवासीर जो है ये एक किस्म का मर्ज है, समझ गए, उसको बवासीर का मर्ज था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैं तो खड़ा नहीं हो सकता बवासीर की वजह से, समझ आ गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्या करो, बैठ लो, अगर ना कि तुम क्या करे, रुकू और सजदा, यानी बैठ कर रुकू और सजदा करो, अगर रुकू और सजदा चाहे बैठ कर भी नहीं कर सकते, तो फिर इशारे के साथ करो। आगे क्या बयान फरमाते हैं, वला यरफ़अु इला वजहु शैअन यसजुद। अब मसला ये है कि अगर कोई इंसान जो है वो नीचे जमीन तक नहीं जा सकता सजदे के लिए, समझ गए, और वो क्या करे, कोई चीज जो है वो तकिया वगैरह उठा ले और वो अपने पेशानी के साथ लगाया करे, नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। अगर कोई जमीन की तरफ सजदे के लिए नहीं जा सकता, तो उसको चाहिए कि वो इशारा करे, लेकिन ये नहीं है कि उस जनेमाज को या उसी तख्त को वगैरह उठाकर जो है अपने पेशानी के साथ लगाए, नहीं, ये जायज नहीं है, क्योंकि हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ एक मर्तबा, समझा के एक आदमी पर गुजर हुआ कि वो क्या कर रहा था, वो यानी वो बीमार था, लेकिन वो तकिया उठाकर सजदे की जगह वो इशारा नहीं कर रहा था, बल्कि तकिया उठाकर अपने पेशानी के साथ लगा रहा था, समझ आए, बैठ कर जो है पेशानी के साथ लगा रहा था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो क्या करे, उस तकिए को फेंक दिया, तो उस आदमी ने दोबारा लकड़ी उठाया, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा लकड़ी को फेंक दिया, और ये इरशाद फरमाया कि अगर तुम जो है सजदे की इस्तिताअत ना रखे हो, तो फिर किसी चीज को उठाने की क्या जरूरत है, बल्कि इशारे से जो है सजदा और रुकू करो, समझ आए, और रुकू के लिए थोड़ा सा झुके और सजदे के लिए थोड़ा सा ज्यादा झुके। और इसी तरह ये मसला भी पेश आता है कि अगर किसी की पेशानी पर कोई फोड़ा वगैरह हो, समझे, दाना वगैरह हो, समझ, जिसकी वजह से वो पेशानी पर सजदा ना कर सकते हो, तो फिर उसके लिए रुकू इशारे के साथ करना जायज़ नहीं है। तो फिर उसके लिए ये जायज़ है कि वो ज़मीन की तरफ जाए और नाक पर क्या करे, पेशानी ना लगे, सिर्फ नाक पर सजदा उसके लिए जायज़ हो जाएगा। तो देखो, वला यरफ़अु इला वजहिही शैअन यसजुद अलैहि, जायज़ नहीं है किसी के कि वो उठाए अपने चेहरे की तरफ कोई ऐसी चीज़, यसजुद अलैहि, जो उस पर वो सजदा करे। अच्छा, आगे ये बयान फरमाते हैं कि अगर कोई जो है बैठने का बिल्कुल इस्तिताअत ना रखता हो, तो फिर उसके लिए शरीयत ने ये भी इजाज़त दी है कि वो क्या करे, लेट कर जो है वो क्या करे, नमाज पढ़े। लेकिन फिर लेटने की दो सूरतें हैं। पहली सूरत ये है कि लेट ले और सर की जाने जो है थोड़ा सा तकिया उठा ले, ताकि उसका सर जो है थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाए, समझ आए, थोड़ा ऊपर आ जाए, और ये क्या है, ये पाँव जो है किबली की जानिब करे, समझ आए कि क्या है, पाँव किबली की जानिब करे, और मुंह भी तो फिर किबली की जानिब आ जाता है ना, तो फिर जो है वो क्या, हाथों के जरिए से इशारा करे, क्या करे, हाथों के जरिए से इशारा करे, समझ आ गए, सजदे का, रुकू का वगैरह का। और दूसरा तरीका, और ये अफजल तरीका है, समझ आ गए, और दूसरा तरीका ये है कि करवट पर लेटे, क्या करे, करवट पर लेटे और किबली की तरफ मुंह करे, समझ आ गए, यानी करवट पर लेटे हो और किबली की तरफ मुंह करे, तो ये भी जायज़ है, समझ आए। दोनों सूरतों में जो उनके लिए आसानी हो दोनों, लेकिन अफजल तरीका
ये है कि क्या है चित लेट जाए, क्या करे चित लेट जाए और थोड़ा सा सर झुकाए ताकि किबली की तरफ उसका इशारा वगैरह आसानी हो, और किबली की तरफ हो क्या करनी चाहिए, पाव करनी चाहिए। देखो फ़इल्लम यस्ततिल क़ुऊदा, बस अगर कोई जो है बैठने कभी इस्तिताअत ना रखता, इस्तल्क़ा अला क़फ़ाहु, तो फिर चित लेट जाए, समझ आ गया, गुद्दी पर क़फ़ा कहते हैं गुद्दी, समझ आए, जो पीछे के जानिब गर्दन होती है जहाँ पर हम पूनी बांधते हैं, समझ आ गया, उसको गुद्दी कहा जाता है। तो गुद्दी पर चित लेट जाए, समझ आ गया, यानी सीना जो है वो आसमान की जानिब हो और पुश जो है वो चित लेटना तो जानते होगे ना। वजअल रिजलैहि इलल क़िबलति, और अपने दोनों पाँव को किबले की तरफ करे, समझ आ गए। वअौमा बिर्रुकू है, वैसे आम हालात में तो किबले की तरफ जो है वो क्या करना ना, पाँव फैलाना जो है वो क्या है, मकरू है, समझ आए, खिलाफ अदब है, मकरू नहीं खिलाफ अदब है। लेकिन यहाँ पर जब वो क्या है, किस चीज़ नमाज की बारी आती है तो फिर उसकी तरफ जाना, पाँव करना, पाँव फैलाना जाए फिर मुस्तहब बन जाता है। देखो शरीयत को देखा जाएगा, समझ आए, हर चीज़ खिलाफ कियास नहीं आता। अच्छा देखो वअौमा बिर्रुकूइ वस्सुजूदी, तो फिर इशारा करे रुकू और सजदा, सजदा रुकू और सजदा इशारे के साथ करे। व इन इस्तजा अला जंबिही, देखो दूसरी सूरत बता दी, व इन इस्तजा अला जंबिही, लेकिन अगर वो अपने पहलू पर लेट जाए, ववजहु इलल क़िबलति, और क़िबले की तरफ उसका मुँह, वो औमा, तो फिर और इशारे के साथ नमाज पढ़े, जायज़, तो ये भी जायज़ हो जाएगा, दोनों सूरत इजाज़त है। लेकिन अफजल कौन सा, इस्तल्क़ा अला क़फ़ाही, यानी चित लेटना और क़िबले की जानिब पाँव करना। फ़इल्लम यस्ततिल इमा बिरासी, लेकिन अगर वैसे तो चित लेटने में जो है वो क्या होता है, सर के साथ इशारा करते हैं ना, सर के साथ इशारा होता है, हाथों का हिलाना इसी तरह सर के साथ इशारा का होता है, समझ आ गया। वला युमी, अच्छा, लेकिन फ़इल्लम यस्तति बिमा, लेकिन अगर कोई मरीज इतना बीमार हो कि वो अपने सर के साथ भी इशारा ना कर सकता, अख़र सलात, तो फिर क्या करे, नमाज को मुअख़्ख़र करे। बाकी आंखों के साथ इशारा करना या बुए के साथ इशारा करना, समझ आ गए, या दिल में इशारा करना, आगे झुकने वगैरह का इशारा करना, समझ आ गए, तो फिर इसके साथ जो है जायज़ नहीं होगा, क्या होगा, जायज़ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये मरीज का नमाज जो है वो खिलाफ कियास हदीस से साबित है, और हदीस में जो है ये क्या है, सर के साथ यानी छत लेटने तक हो सर के साथ इशारा करने का बात तो वारिद हुआ है। बाकी बुओं के साथ इशारा करना, आईब्रू जिसको कहा जाता है, या आंखों के साथ इशारा करना, या किस चीज़ के साथ हो, दिल के साथ इशारा करने का, इस बात तो साबित नहीं है। इसी वजह से हदीस, जितना हदीस साबित है उतनी ही तक हम अमल करेंगे, समझ आ गया। तो बाकी जो है वो जायज़ नहीं होगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आंखों के साथ इशारा करना जो है वो क्या है, नमाज, यानी इन आंखों के साथ इशारा करके नमाज पढ़ना जो है वो जायज़ हो जाएगा, समझ आए। लेकिन हम हनफी है, इस वजह से हमारे लिए जायज़ नहीं है। देखो फ़इल्लम यस्ततिअ इमा बिरासी अख़र सलात, लेकिन अगर कोई इस्तिताअत ना रख तो अपने सर के साथ इशारा करने का, अख़र सलात, तो उसको चाहिए कि नमाज को मुअख़्ख़र करे, यानी बाद में जब ठीक हो जाए तो फिर क़ज़ा कर ले। वला युमी बिआइनिही, और ना अपने आंखों के साथ इशारा करे, वला बिहाजिबैहि, और ना अपने दोनों बुएं के साथ इशारा करे, वला बिक़ल्बिही, और ना अपने दिल के साथ इशारा करे, यानी इनके साथ नमाज नहीं होगी। फ़इन क़दरा अलल क़ियाम वलम यक़दिर अला रुकूअ वस्सुजूद, आगे ये मसला बयान फरमाते हैं कि एक इंसान जो है वो क्या होता है, खड़ा तो हो सकता है लेकिन बैठ नहीं सकता, सजदा नहीं कर सकता, समझ आ गए। तो फिर जो है यानी खड़ा क़ियाम तो कर सकता है, यानी बाज़ लोगों को बाज़ बीमारी होती है ना कि वो बैठ नहीं सकता, समझ आ गई हो, लेकिन वो खड़ा होना उसके लिए अच्छा होता है, बेहतर होता है, समझ आ गए हो। तो फिर इमाम क़ुदुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं क्या, तो फिर उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि वो खड़े होकर क़ियाम करे फिर सजदा जो है, रुकू और सजदा है इशारा करे, नहीं, बल्कि वो शुरू ही से जो है बैठ जाए और हर चीज़ जो है वो क्या करे, इशारे के साथ करे। क़ियाम में जो है वो क्या, क़ियाम भी बैठ कर पढ़े, और क्या होता है इसी तरह रुकू सजदी भी इशारे के साथ पढ़े, समझ आई। यानी अगर कोई शख्स जो है वो रुकू और सजदे पर तो कादिर नहीं है लेकिन क़ियाम पर कादिर है, तो फिर उसके लिए ये जायज़ है और शुरू से क़ियाम को तर्क करके बैठ कर जो है रुकू और सजदे को क्या करे, इशारे के साथ पढ़े, समझ आई। अब वो हम ये इस पर वाजिब नहीं कर सकते कि नहीं तुम क़ियाम के लिए खड़े हो जाओ फिर रुकू सजदे जो है इशारे के साथ करे, समझ आ गए। देखो फ़इन क़दरा अलल क़ियाम, पस अगर कोई शख्स जो है क़ियाम पर तो कादिर हो, वलम यक़दिर,
क्या वलम यक़दुर अला रुकू व सुजूद, लेकिन अगर वो रुकू और सजदे पर कादिर ना हो, समझ आ गई, यानी ज़मीन की तरफ वो झुक ना सकते हो, समझ आ गई हो, तो क्या वलम यल्ज़िमु क़ियाम, तो उस पर क़ियाम करना ज़रूरी नहीं है, समझ आ गई हो। वजाज़ अन युसल्ली क़ाइदन यूमी ईमान, तो फिर उसके लिए इजाज़त है कि वो बैठ कर नमाज पढ़े, यानी क़ियाम भी बैठ कर कर सकता है, यूमी ईमान, बाकी रुकू और सजदे जो है इशारे के साथ कर ले। अच्छा, आगे ये बयान फरमाते हैं कि एक तंदुरुस्त आदमी था, कौन था, एक तंदुरुस्त आदमी था, उसने जो है वो क्या कर दिया, नमाज शुरू की तंदुरुस्ती के हालत में, यानी खड़े होकर क़ियाम शुरू कर लिया, समझ आ गए, खड़े होकर, ये कैमरा बंद कर ले शाबाश। अच्छा, तो फिर जो है उसने क्या कर दिया, यानी एक तंदुरुस्त आदमी ने जो है क़ियाम जो है खड़े होकर शुरू की, फिर अचानक जो है उसका दिल ख़राब हो गया, वो खड़ा नहीं हो सकता, समझ आ, बाद में वो मरीज़ हो गया, बीमार हो गया, समझ आ गई हो, हालत ख़राब हो गई, तो फिर इमाम खुदरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब उसने जो है क्या कर दिया, खड़े होकर क़ियाम शुरू की, तो अब जो है जब उसका तबीयत ख़राब हुआ तो फिर वो जो है बाकी बैठ कर जो है नमाज पूरा कर सकता है, क्योंकि उसने अक़वा हालत में जो है नमाज शुरू की और अदना पर ख़त्म की, तो अक़वा से अदना की तरफ जाना दुरुस्त है, क्या है, अक़वा से अदना की तरफ जाना दुरुस्त है, यानी तंदुरुस्ती की हालत में क़ियाम शुरू करना ये अक़वा है ना, और बैठ कर जो है ये क्या करना, रुकू और सजदे को इशारे के साथ ख़त्म करना जो है ये क्या है, ये अदना हालत है ना, क्योंकि बैठ कर जो है ये अदना हालत है, तो फिर अक़वा पर, यानी अक़वा पर अदना की बिना करना दुरुस्त है, अक़वा पर अदना की बिना करना दुरुस्त है। लेकिन अगर किसी ने जो है बैठ कर, यानी पहले इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, समझ आ गया, बैठ कर शुरू की, फिर उसकी अचानक जो है बिफज़लिल्लाह अल्लाह ताला की करम से उसका तबीयत अचानक ठीक हो गया, समझ आ गई, नमाज की बरकत से, तो अब फिर क्या करेगा, उसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, आगे मसला आता है। देखो बस अगर एक तंदुरुस्त आदमी ने नमाज शुरू की, बाज़ सलात ही अपनी बाज़ नमाज क़ाइमन शुरू, यानी खड़े होने की हालत में, सुम्मा हदस बिही मर्ज़न, पे से उसको वो मर्ज़, उसको क्या हो गया, मर्ज़ लाहिक हुआ, अतम्महा क़ाइदन, तो फिर उसको चाहिए कि वो बैठ कर क्या करे, बैठ कर नमाज को पूरा करे, यार को वयसजुदु, बैठ कर रुकू करे और सजदा करे, कोई भी वयुमी ईमान, और रुकू और सजदे को इशारे के साथ करे। अच्छा, इल्लम यस्तति रुकू व सुजूदा, यानी पहले तो बैठ कर रुकू और सजदा करे, लेकिन अगर वो रुकू यानी सजदे की तरफ, ज़मीन की तरफ वो नहीं जा सकता, तो फिर इशारे के साथ भी पढ़ सकता है, इल्लम यस्तति रुकू व सुजूदा, अगर वो क्या करे, रुकू और सजदे का इस्तिताअत ना कर रखता हो। आगे औ मुस्तल्क़ियन, या चितलेट, अब अचानक इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो बैठ भी नहीं सकता, समझ आ गई, कमर में अचानक दर्द हो गया, समझ आ गई, तो फिर जो है और मुस्तल्क़िया इल्लम यस्तति, लेकिन अगर वो क्या है तो फिर चित लेट भी सकता है, समझ आ गई हो, इल्लम यस्ततिल क़ुऊद, अगर वो बैठने का इस्तिताअत न रखता हो। आगे क्या बयान फरमाते हैं, आगे बयान फरमाते हैं कि एक बीमार शख्स था, उसने जो है बैठ कर नमाज पढ़ना शुरू करे, अब अल्लाह ताला की फजल करम से जो है वो अचानक ठीक हो गया, समझ आ, ठीक ठाक हो गया, अब वो खड़े होने का इस्तिताअत रखता है, तो अब आया जो है तो अब उसके लिए तो ये ज़रूरी है कि वो खड़ा हो जाए, क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। अब देखो उसने अदना हालत, अदने स्टेटस पर जो है नमाज शुरू की, अक़वा हालत में बंद की, समझ आए, ख़त्म की। अब यहाँ पर क्या हो गया, उसके पहले मसले की बरखिलाफ हो गया कि यहाँ पर अदना पर अक़वा की बिना हो गई, अदना पर अक़वा की बिना है, पहले में क्या था, अक़वा पर अदना की बिना हो गई, समझ आए, बिना हो गई थी, समझ आ गए, बिना, बी बा नून अलिफ हमजा, बिना, समझ आ गए। अच्छा, तो अब क्या करें, अब आया उसकी नमाज जायज़ तो जाएगी या जायज़ नहीं होगी, समझ आए, या अज़्ज़ा सरीनो दोबारा नमाज पढ़ेगी, तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, इसका नमाज नहीं होगी, बल्कि उसको चाहिए कि दोबारा जो है तंदुरुस्ती हालत में, यानी पूरा नमाज जो है अक़वा हालत में पढ़े, यानी खड़े होकर नमाज पढ़े, जबकि शेखैन फरमाते हैं कि नहीं, बैठ कर जो है जो नमाज हुआ है वो भी ठीक हो गया, और बाकी वो जितना इस्तिताअत रखता है खड़े होकर नमाज पूरा कर ले, उसके लिए दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और शेखैन का कौल भी मुफ्ता बिही है, क्या है, मुफ्ता बिही है, समझ आ गए, मुफ्ता बिही किसी तरह लेके जाता है, मीम फा ता या, और यहाँ पर खड़ा जवाब है, मुफ्ता ब्या बिही, बिही बा
हाँ समझा कि ये भी है, समझा कि बाज़ तालिबात ने गलत लिखा था मुफ्ताबी टेस्ट में। बहरहाल अच्छा, तो असल में उनके दलाइल क्या है? इमाम तो देखो हमने पीछे जमात में पढ़ा था कि अगर कोई इमाम जो है वो बैठा हुआ हो और क्या हो मुक्तदी खड़ी हुई हो, समझ आ गए, तो आया उसके पीछे यानी इमाम ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त होगा या नहीं, जो कि क्या है बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा हो, समझ आ गए। तो हमने पढ़ा था वहाँ पर हमने इख्तिलाफ पढ़ा था कि शेखैन के नज़दीक जायज़ है और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जायज़ नहीं है। तो उसी इख्तिलाफ में चूंकि उस मसले में इख्तिलाफ है, तो यहाँ पर भी इस मसले में इख्तिलाफ आ गया है। वो किसी तरह वो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक कि शुरू की 2 रकात शुरू की 2 रकात का क्या है, इसकी मिसाल इमाम की तरह है। किस चीज़ की तरह है? इमाम की तरह है। और आखिरी 2 मिसाल की मेरी मिसाल मुक्तदी की तरह है। जब इमाम जो है वो तंदुरुस्त हो और मुक्तदी जो है वो क्या हो, वो तंदुरुस्त ना हो, बीमार हो, तो फिर जो है जायज हो जाता है, समझेंगे। यानी अगर इमाम शुरू की 2 रकात खड़े होकर पढ़े, आखिरी 2 रकात बैठ कर पढ़े, तो ये नमाज जायज हो जाता है, क्योंकि शुरू की इमाम जो है इमाम की मिसाल है ना, इमाम तो खड़ा है और समझ आ गए, और आखिरी 2 रकात की मिसाल मुक्तदी है, मुक्तदी बैठी हुई है, तो ये जायज है। लेकिन अगर शुरू की 2 रकात बैठी हुई पढ़े और आखिरी 2 रकात खड़े होकर पढ़े, तो इसका मिसाल ऐसा हो गया कि इमाम जो है वो क्या है, बैठा हुआ है और मुक्तदी खड़े हुए है, समझ आ गए। तो इसी वजह से जब उस मसले में हमने पढ़ा था कि जब इमाम बैठा हुआ हो और मुक्तदी खड़े हो तो जायज़ नहीं होगा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक, जबकि शेखैन के नज़दीक जायज़ है। बहरहाल मुफ्तबी को जो है वो शेखैन के साथ है कि अगर कोई इंसान जो है वो क्या है, बीमारी की हालत में नमाज शुरू की और फिर बाद में वो ठीक हो गया, तो फिर जितना नमाज बैठे हुए पड़े है वो भी ठीक हो गया। अब उस पर वाजिब है कि वो क्या है, वो खड़े हो जाए, और तंदुरुस्ती की हालत में क़ियाम चूँकि तर्क नहीं होती, इसी वजह से क़ियाम को दोबारा ना क़ियाम क्या जितना बाकी है क़ियाम उसको खड़े होकर जो है वो ख़त्म कर ले, उसका नमाज जायज़ हो जाएगा। इसकी समझ आ गई इस मसले की? देखो, वमन सल्ला क़ाइदन यरकू व यसजुद लिमरदिन। अच्छा, अगर किसी आदमी ने जो है बैठ कर क्या कर दी, रुकू और सजदा किया, लिमरदिन किसी बीमारी की वजह से, सुम्मा सहा फिर जो है वो क्या हो गया, ठीक हो गया, बिना अला सलातिही क़ाइमन, फिर वो उसने अपनी नमाज पर बिना की, बिना का मतलब ख़त्म की, समझ गए, अपने नमाज को ख़त्म की, क़ाइमन किस चीज़ की, खड़े होकर, समझे। लेकिन यानी शुरू की रकात जो है वो बैठ कर पढ़ी, आखिर की नमाज जो है अगर इसमें क़ियाम था, फिर क़ियाम होकर जो है खड़े होकर जो है नमाज को क्या कर दिया, यानी तंदुरुस्ती की हालत में जो है उसने नमाज को ख़त्म की, तो फिर जो है ये जायज़ हो जाएगा। देखो शेखैन के कौल पर फतवा दिया, सर से इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के कौल को तो जिक्र भी नहीं किया, मैंने जिक्र तो की। फ़इन सल्ला बाज़ सलाती बि ईमान, आगे मसला ये बयान फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स ने जो है वो कोई बीमार था, इतना बीमार था कि वो इशारे के साथ नमाज पढ़ रहा था, समझ आएगी क्या, बैठ कर भी और इशारे के साथ, यानी जमीन की तरफ बिल्कुल गए ही नहीं सजदे के लिए जो है क्या इशारा किया, और फिर जो है वो इतना अल्लाह की फजल से इतना क्या हो गया, कादिर हो गया कि वो सजदे और रुकू पर कादिर हो गया, समझे। तो फिर उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो इस पर बिना करे, तो फिर उसके लिए ये क्या होगा, ये हुक्म होगा कि वो अज़सरिनो नमाज पढ़ ले, क्या करे, यानी शुरू से नमाज पढ़े। क्योंकि ये इशारत जो है ना, ये इसके बारे में कोई दलील नहीं है, समझ गए। यानी अगर कोई इंसान जो है वो इशारे के साथ नमाज शुरू करे और फिर जो है वो तंदुरुस्त हो जाए और बैठ कर या खड़े होकर जो है नमाज खत्म करे, तो उसके बारे में कोई दलील नहीं है हमारे लिए, समझ गए। ऊपर के मसले में तो हमने बता दिया कि शुरू की दो रकातें किस चीज की तरह है, इमाम की तरह है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो है वो क्या करे, बैठ कर पढ़े थे, और मुक्तदी सहाबा कराम जो थे वो क्या थे, वो खड़े थे, तो वो तो जायज हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में हमारे पास कोई दलील नहीं है, और कियास से तो हम साबित ही नहीं कर सकते। इसी वजह से जो है अब यहाँ पर उसके लिए जायज नहीं है कि वो बास नमाज जो है वो क्या करे, इशारे के साथ पढ़े और फिर ठीक हो जाए,
बाकी नमाज जो है वो क्या तंदुरुस्ती की हालत में पढ़े, नहीं, बस उसको चाहिए कि वो सलाम पे ले और दोबारा नए शर से जो है वो चाहे नियत बांधे और सेहत की हालत में जो है खड़े होकर नमाज पढ़ ले। देखो वमन सल्लबाज़ सलाती भी ईमान, अगर किसी नमाजी ने अपने बाज नमाज के बाद हिस्से को इशारे के साथ पढ़ा, सुम्मा क़दर अला रुकू व सुजूद, फिर जो है वो कुदरत अल्लाह ताला ने उसको तौफीक दी किस चीज़ पर, रुकू और सजदे, इस तरफ सलात, तो फिर उसको चाहिए कि नमाज क्या करे, नमाज को दोहरा ले। वमन उग़मिया अलैहि, और जिस शख्स को बेहोश हो गया, आगे मसला ये बयान फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो बेहोश हो गया, अचानक बेहोश गया, गिर गया, समझ गए। अब देखेंगे कि अगर उसका एक दिन यानी 5 नमाजें या 5 नमाजों से कम उससे नमाज, यानी वो इतना, मिसाल के तौर पर आज सुबह नहीं, जुहर को वो बेहोश हो गया था, बेहोश था, जुहर की नमाज भी उससे चली गई, असर भी चली गई, फजर भी चली गई, आयशा भी चली गई, समझ, मगरिब भी चली गई, आयशा भी चली गई, 4 नमाज चली गए। फिर वो फजर में तंदुरुस्त हो गया, यानी अचानक फूट गया, समझे, होश आया उसमें, तो अब उसको चूंकि ये 5 नमाज कज़ा नहीं हुआ था ना, तो अब उसको चाहिए कि 4 नमाजी भी कज़ा कर ले, समझ आ गया। लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो 3 दिन बेहोश था, 5 नमाजी उस पर ज्यादा हो गए, यानी 6 नमाजी या 6 नमाजों से ज्यादा उससे चले गए, समझ गए, तो फिर बाकी नमाजें यानी जो पीछे रह गए हैं तो फिर उसकी कज़ा लाजिम नहीं होगी। आज खुलासा क्या निकला इस मसले से कि अगर कोई शख्स जो है इस हालत में बेहोश हो गया कि वो बेहोश था 5 नमाजों से कम या 5 नमाजें उस पर क्या हो गए, उसकी जिम्मे लाजिम हो गई, कज़ा हो गए, फिर अचानक वो जो है वो उस होश में आया, तो फिर उस पर जो है वो क्या होगी, इसकी कज़ा लाजिम होगी। लेकिन अगर वो इतनी देर तक बेहोश रहा कि उससे 5 नमाजों से ज्यादा उसकी जिम्मे कज़ा नमाजें वो वाजिब हो रहे थे, तो फिर उससे नमाजें साक़ित हो जाए, चाहे 1 महीने तक, 15 दिन तक, 7 दिन तक, जितना भी बेहोश था वो क्या होगी, उतनी जितनी भी कज़ा हो रही थी वो सब इससे माफ हो जाएंगे। क्योंकि ज्यादा नमाजों के पढ़ने में उस पर हर्ज लाजिम हो गया ना, जिस तरह हाइजा पर जो है वो क्या होती है, हर्ज लाजिम आती है ना, ज्यादा नमाजें मींस की हालत में नमाजें अगर हम इस पर वाजिब करें, तो इसी तरह इस पर अगर एक दिन और एक रात से ज्यादा नमाजें हम वाजिब करें तो फिर हर्ज लाजिम होगी, और शरीयत में हर्ज नहीं है, समझ आ गए। अलबत्ता 5 नमाज या 5 नमाजों से कम में कोई हर्ज नहीं है, इसी वजह से इसमें जो है वो क्या होती है, हर्ज नहीं, इसी वजह से इसको हमने कज़ा कर दिया, समय फुक़हा ने इस पर कज़ा लाजिम कर दिया। देखो वमन उग़मिया अलैहि, अगर कोई शख्स जो है बेहोश हो गया, खम्स सलवाती, नहीं उस पर जो है 5 नमाजें फमा दूनहा, या 5 नमाजों से कम क़ज़ा, तो फिर क्या होगा, कज़ा लाजिम हो गए। इज़ा सहा, तो बस जो है अगर वो क्या हो गए, इज़ा सहा, जब वो ठीक हो जाए, क़ज़ा, तो फिर वो इसकी कज़ा लाजिम है। देखो वमन उग़मिया अलैहि, और जिस शख्स पर कोई शख्स बेहोश हो गया, खम्स सलवात, 5 नमाजों से, फमा दूनहा, या इससे कम, क़ज़ा इज़ा सहा, तो इन नमाजों की, 5 नमाजों की या 4 नमाजों की, 3 की, 2 की, जितने भी कज़ा होगी, लेकिन 5 या 5 से कम हो, तो फिर उसकी कज़ा लाजिम होगी, इज़ा सहा, जब वो ठीक हो जाए। व इन फाततहु बिल इग़माई अक्सर मिन ज़ालिका, लेकिन अगर उससे इतनी नमाज़ें कज़ा होगी जो हो गई बेहोशी की वजह से, अक्सर मिन ज़ालिका यानी 5 से ज्यादा, लम यक़ज़ा, तो फिर इसकी कज़ा लाजिम नहीं होगी। क्यों, वमा जअल अलैकुम फी दीन मिन हरज, यानी तुम पर जो है दीन में कोई भी हरज नहीं है। तो 5 से ज्यादा में हर्ज लाजिम आता है, 5 और 5 से कम में हर्ज ज्यादा लाजिम नहीं आता, इसी वजह से इसकी कज़ा लाजिम नहीं होगी। अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इक्तिफा करते हैं। आगे बाबू सुजूद तिलावा इंशाल्लाह पढ़ेंगे अगर जिंदगी रही। कोई सवाल है, तलबात ये दलाइल याद किया करे, समझ आ गई हो, ये अक़वाल भी याद किया करे। समझ, ये क़ुदूरी तो बहुत बड़ी किताब है, इसी वजह से ये तो इख्तिलाफी मसलों की किताब है ना, इसमें तो दलाइल, ये कोई तफ़हीमुल फ़िक़्ह तो नहीं है कि हम इसमें दलाइल नहीं पढ़ेंगे, समझ आ गई हो। और जिसमें ये गौर से पढ़ लिया करे, समझ आ गए। बाज़ तालिबात कहते हैं कि हमें यानी हमने सवाल को ठीक से नहीं पढ़ा था, सवाल ठीक पढ़ कर कि क्या क्या मांग रहे हैं, कितने दलाइल मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, समझ आ गए। पूरे 2-3 मरतबा दोहरा लो, फिर जो है शुरू करें। ये तो वैसे टेस्ट है, आप लोगों को याद करवाने का एक जरिया है, समझ आए। असल में तो
وہ ہوگی نا یہ سیمسٹر انشاءاللہ اگلے مہینے میں جو ہے وہ کیا ہوگی آپ لوگوں کی پیپر ہوگی، سمجھ آ گئے. اگر آپ لوگ چاہتے ہو تو پھر میں عبارت بھی دیا کروں گی، سمجھ آ گئے. عبارت کے ساتھ مسئلہ حل کرنا آسان ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں تو اسی پر اتفاق کرتے ہیں.